Arnaji, we are live. We can start. जी, thank you. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. आप सभी को नमस्ते. A very good morning to all of you. Myself, Dr. Aparna Dev Khandelwal, Assistant Professor, INAX. I'm the moderator of this session, and I welcome you all for this lecture series. Shresth Kala Sangam, in collaboration with Hansraj College, University of Delhi, presents Yoga from Home lecture series on the occasion of the 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. On the 5th October, we have inaugurated our 15 days yoga camp, and this Yoga from Home lecture series is part of this camp only. That is specially designed in a way to have deeper understanding on yoga. You all will be pleased to know that this program is going to live on Facebook pages of both the organizations. Hence, it is indeed a great initiative by both the organizations to try to reach out as many as youth and senior citizens. Moving ahead, let us know about the brief intro of both the organizations. As you all know, and we are very much familiar with our Shresth Kala Sangam, that is located in New Delhi only, and it is a registered society that is dedicated for the promotion of Indian classical dance, music, art, culture, literature, and yoga through various performances, teaching, conducting workshops, lecture demonstrations, seminar, live performances, webinar, conferences that nurture the inner potential of the individual, artistic collaboration, and experimentation. It considers these attributes as emotions, which has infinite things to explore inside. It also believes one can only reach out to bring out the beauty of it when one assiduously considers it as a daily routine or ritual. The society is dedicated in maintaining the authenticity of the art vocabulary and work within its framework while pushing the boundaries. A place where individuals get to experience self-realization through various mediums. With this comes the evolution of their own life, which leads to the clarity in their thought process and helps them create their own new version of themselves more better and better every day. Most importantly, it helps them to develop great esteem and a deep sense of self-worth by focusing on self-improvement, which will lead to cherishing oneself without any judgment and comparison. The founder president of Shresth Kala Sangam is Mrs. Mehak Chawla ji. She is a Bharatanatyam and Chow dancer and a choreographer from Delhi. And there are many other eminent scholars in our organizing committee, like Chief Patroness Shri Margi Madhuji, an eminent scholar and a Kodiyattam dancer and a choreographer from Kerala. Chairperson organizing committee is Dr. Baldevanand Sagar ji, who is educationist, writer, and visiting faculty, National School of Drama, Delhi. To name a few who are in the organizing committee and in the advisory board of the society. बलदेवानंद सागर जी अभी हमारे इस इनॉग्रल सेशन के जो हमने 5 अक्टूबर को किया उसमें चीफ गेस्ट भी रह चुके हैं और आप सबने उनका लेक्चर बहुत ध्यान से शायद सुना भी होगा. Few aims and objectives of Shresth Kala Sangam. It helps in facilitating events that promote art and culture through outreach programs to provide a forum for a creative dialogue and creating opportunities through performances, conferences, seminars, workshops between and among the diverse arts, traditional and contemporary, identifying excellence and potential in the arts and offering avenues of encouragement. और श्रेष्ठ कला संगम से हम सभी बहुत टाइम से जुड़े हैं. लगभग ये पूरा जो ईयर है 2020, इसमें हमें श्रेष्ठ कला संगम ने ही हमें लगातार एनकरेज मोटिवेट करके रखा हुआ है. अगर हम देखें तो लगातार अपने आर्ट एंड कल्चर जैसी परफॉर्मेंसेस, लेक्चर सीरीज के थ्रू हम निरंतर श्रेष्ठ कला संगम के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं हमारा एक मनोबल बढ़ाया हुआ है. और इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा हम अपने आप को एक अलग से दूसरे जो कला के प्रति हमारा जो एक मोटिवेशन है वो सब और थोड़ा मन में जो प्रसन्नता, उत्सुकता, उन सब के लिए हम श्रेष्ठ कला संगम के धन्यवाद करते हैं. About the Hansraj College.
It is one of the largest constituent colleges of University of Delhi, a premier institution with highly qualified academicians imparting education in different fields. The college today enjoys a reputation for outstanding performances in academics, sports, and extracurricular activities. Rated among top 10 colleges of the country in science, commerce, and arts, the college ensures complete development of the body, mind, and soul. While ensuring the traditional Indian values in each of its students, the college was founded by the DAV College's Managing Committee on July 26, 1948, in the sacred memory of Mahatma Hansrajji, a pioneer in the field of education. It is today one of the leading lights in DAV family of over 700 institutions and one of the largest constituent colleges of Delhi University. More than 5,000 students on its roll interact here with galaxy of scholars on its faculty. The college has completed 67 years in the realm of imparting higher education. It has made a significant and unparalleled contribution to society in terms of producing numerous dignitaries, scholars, intellectuals, and sportspersons who serve different domains, not only in our own country, but even at international levels. Over the years, the college has built up an impressive infrastructure. It includes a well-stocked central library, department libraries for science subjects, and a book bank for needy students. The college has 6 computer labs and 18 science laboratories. Its sports facilities include a vast playground and an indoor sports complex, playrooms, amphitheater, lift facility, and the only electronic shooting range in the university. The college has an ultra-modern air-conditioned auditorium that has capacity of 500 persons, and it is fully equipped with sound and light systems and imposing a stage. Another attraction is an air-conditioned seminar room, with a seating capacity of 120 people, and with the state-of-art sound and projection systems. The college has a hostel accommodating about 200 undergraduate boys, and it is well fitted with solar geysers and 24-hour backup. As you enter the portals of this institution, the calm atmosphere of a beautiful campus surrounded by lush green lawns and a magnificent heritage building touch your soul. For the benefit of meritorious and needy students, the college provides a number of scholarships and free-ships. It also provides on its premises ATM and banking facilities through branch of Canara Bank. The college also has a placement cell for providing employment opportunities to graduating students through campus recruitment in the best of national and international organizations. As the stream of talent flows from this college to the world, join us to create and discover a new world. अब हम जिस काम के लिए यहाँ पर आपस में सब जुड़े हैं, जिस लेक्चर सीरीज के लिए हम जुड़े हैं, उसका मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी. That in this corona era, we all are surrounded by negativity, and yoga focuses on bringing harmony between mind and body. And this harmony is possible only when we are free from worries and mentally sound. So today we are going to have an invited lecture on this subject only, that is stress management and mental well-being. But before that, I would like to invite our today's guest. And as you all know that we have welcome address by Professor Ramaji. And you are aware that she is an educationist, writer, and principal of Hansraj College, Delhi University. But today, due to some unavoidable circumstances, she is not here with us. But she has sent her good wishes, a warm welcome to all of you before the program only. So we are thankful to her. We are thankful to Professor Rama Madam for sending her wishes, and hope she may join us tomorrow, and looking forward to it. Our another invited guest and the main speaker of this lecture series is Ms. Shanki Kumar. She is MBBS and psychologist, Dr. B.L. Kapoor Super Speciality Hospital, Delhi, India. As you all know that we are going to have welcome address by Professor. We are actually, it was planned earlier that Professor Ramaji is going to give us a welcome address of this session. But as I just told you that she's not available today, so I would like to give her a brief intro about her. प्रोफेसर रमा जी हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप सभी जानते हैं, और जानी मानी प्रख्यात
हिंदी लिटरेचर और मीडिया की स्कॉलर रह चुकी हैं और अभी भी हैं, उस क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही हैं लगातार अपनी कृतियों के द्वारा। और बहुत ही उन्होंने काम किया, लगभग 3 दर्जन किताबें उन्होंने संस्कृत जर्नल, हिंदी जर्नलिज्म पे, लिटरेचर पे, सिनेमा पे एंड एजुकेशन के विषयों पर लिखी हैं। और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं और जो कि बुक्स का भी जो मेन थीम है, दैट इज बेस्ड ऑन द इंडियन कल्चर एंड नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। प्रोफेसर रमा जी जो हैं, उन्होंने 3 डिकेड्स तक हमें हिंदी पोइट्री, फिक्शन, जर्नलिज्म, सिनेमा, एजुकेशन के विषय में स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है और उसी से रिलेटेड स्टूडेंट फ्रेंडली बुक्स के ऊपर लिखा भी है। और मोर देन हंड्रेड्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स उन्होंने ऑर्गेनाइज भी किए हैं पिछले कुछ सालों में। And she has organized All India debate competition also, which was a great achievement in itself. And print and electronic media के through All India Radio, आकाशवाणी, दूरदर्शन, हिंदुस्तान जन सत्ता पर अधिकतर वो लिखती रहती हैं और अपने उनके व्याख्यान भी आते रहते हैं। एंड उनके आर्टिकल्स और उनके द्वारा जो लिखे जाते पत्रिकाओं में जो उनके व्याख्यान आते हैं, उनमें और वो काफ़ी नेशनली एंड इंटरनेशनली एक्लेम्ड भी हैं। अपनी फील्ड में वो बहुत ही प्रसिद्ध वक्ता के रूप में जानी जाती हैं और कई अवार्ड्स के द्वारा भी वो सम्मानित हैं, जैसे महादेवी वर्मा साहित्य सम्मान अवार्ड, साहित्य भारती सम्मान अवार्ड, विद्या रत्न अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, शक्ति अचीवमेंट अवार्ड, फीमेल जर्नलिज्म अवार्ड एंड मेनी मोर। एंड मैडम, हम आपको इस प्रोग्राम में मिस कर रहे हैं, बट होप सो कल आप हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगी, जो आज का हमारा लेक्चर सीरीज का प्रोग्राम है, उसमें जो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, एंड अगर आप, क्योंकि दिस सेशन इज ओपन टू ऑल एंड ऑल्सो इट इज गोइंग लाइव, as you all know, so questions and comments are welcome from you all, and you can give that comments and questions in the chat box of this program, of this in the session, and we may take the relevant ones only. Now, अब जिस घड़ी का हमें इंतजार है हमारी इनवाइटेड स्पीकर के लेक्चर के लिए, तो उनको इनवाइट करने से पहले मैं उनका थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी। Ms. Shanky Kumarji is a psychologist in B.L. Kapoor Super Speciality Hospital, Delhi, India. She is an empathetic, high-achieving gold medalist with double masters in psychology, who thinks critically and collaborates with teams to deliver multiple complex projects of utmost quality within the time frame. Having developed fluency in core behavioral science concepts such as literature, scans, rigorous evaluation research methods, and data analysis, as a psychology advisor to multidisciplinary teams. We welcome you, Shanky ji, for your talk. Thank you so much, Dr. Aparna, for the warm introduction. And thank you so much for speaking with so much energy and so much vibrance this morning. I think this is the right start that we needed for our session. So thank you so much for that. First of all, I'd like to begin this lecture series by expressing my gratitude towards Shresth Kala Sangam and Hansraj College for organizing this wonderful event and connecting all of us together. I mean, this event holds a lot of importance since all of us have come together to understand stress management and mental well-being. I've been a part of Shresth Kala Sangam for a while this year, and I think most of the talks that have been here have been about mental well-being. अलग अलग तरीके से हम सेम चीज पे फोकस करते हैं कि कैसे हम अपने आप को इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पॉजिटिव रखें, मोटिवेटेड रखें, या स्ट्रेस को एक बेहतर तरीके से हैंडल करें। बिकॉज ये ऐसी बात है, आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक रिवर फ्लो कर रहा है और उस रिवर का स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? आप रिवर को स्टॉप तो नहीं कर सकते, बट आप वहां पे एक डैम बिल्ड करते हैं ताकि जो रिवर का फ्लो है वो कम हो जाए और वो एक डायरेक्शन में हो जाए। तो हम अपनी जितनी थॉट्स हैं, जितनी इनसिक्योरिटीज हैं, जितना सारा स्ट्रेस है हमें कोविड की वजह से और जो लाइफ चेंज हुई है उसकी वजह से, उसको हमें कहीं ना कहीं अपने माइंड को या अपने आप को ट्रेन करना होता है कि हम अपने थॉट प्रोसेसेस को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जा पाए। सो सेम वे जैसे हमेशा
लेक्चर सीरीज में मैं आपके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाती हूँ और उसके माध्यम से हम हर पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं साथ में। तो आई थिंक हम आज भी सेम तरीके से ही वो करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप जैसे डॉक्टर अपर्णा ने बताया वो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, एंड जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो सेशन के एंड में डेफिनेटली एड्रेस किए जाएंगे। So let's start with our presentation. I'll keep switching with the presentation and taking it off so that we can interact more comfortably. So stress management and mental wellness. Our agenda for today, since today is World Mental Health Day, so I think it's the best platform कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करें और मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़े और ज्यादा अवेयरनेस लेके आए कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वी आर एबल टू डील विद दी सिचुएशंस इन अ बेटर वे। बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में हमारे एक्सटर्नल हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? वी कांट चेंज हमारे पास वाली एनवायरमेंट, वी कांट चेंज कोविड सिचुएशन, जो भी सारे स्ट्रेसेस हैं, बट व्हाट कैन वी वर्क ऑन? व्हाट इज इट दैट वी कैन चेंज? आवर माइंडसेट, जो हमारा परसेप्शन है उस सिचुएशन को लेकर। अगर हम लोग दो लोगों को सेम सिचुएशन में रखेंगे, आई एम वेरी श्योर उनका स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका या इस चीज से डील करने का तरीका बहुत अलग होगा। तो हम अपने आप को हर टाइम पे इक्विप कर सकते हैं, बेटर तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। सो टुडे इन दिस सेशन आई विल ट्राई एंड गाइड यू ऑन लिटिल बिट ऑफ थिंग्स एंड एक्टिविटीज जो आप खुद से कर सकते हैं सो दैट यू कैन डील विद स्ट्रेस इन अ मोर एफिशिएंट वे। As you know, I am a psychologist at Dr. B.L. Kapoor Super Speciality Hospital. I've been practicing with them for a long time now, and I think Dr. Aparna covered this very well and gave me a wonderful introduction. Okay, so before we start talking about stress, let me ask you a question. क्या आपको लगता है स्ट्रेस हमारे लिए हेल्पफुल है हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या नहीं? So most of you would say nahi. जैसे I can understand most of the people, the moment we hear stress, हमें लगता है it's very negative. Oh my God, I'm stressed. I'm going to be tensed. या मैं इस situation को handle नहीं कर पाऊंगी. But according to psychology, according to research, it says कि थोड़ा amount of stress हमारे लिए बहुत important है. हमें push करने के लिए, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। साइकोलॉजी में हम इसे यर्क्स-डॉक्सन लॉ कहते हैं, जो कहता है कि अगर हमारे को थोड़ा स्ट्रेस या थोड़ा प्रेशर होता है, वो हमें अपना फुल पोटेंशियल लेने के लिए पुश करता है। बट अगर ये स्ट्रेस उससे ज्यादा कंटिन्यू हो जाता है, then it continues to be negative for us. So first notion that I want to change today is to seeing stress as negative, as something जो हमारे को बहुत ज्यादा डाउन फील कराता है या हमें ड्रेन्ड फील कराता है. That is absolutely a myth. Stress in a small amount, in a right amount, is important for us to boost our performance. एंड जैसे ही हम ये नोशन चेंज करते हैं, हम उस चीज को नेगेटिवली एसोसिएट करना बंद कर देते हैं. Okay, now similarly, one more fun fact I would like to tell you. Do you think one positive and one negative thing are equally powerful in our mind? हमारे माइंड में इतनी सारी थॉट्स, इतनी सारी मेमोरीज होती हैं जो कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती हैं. आई मीन if you read research on this, आप देखेंगे कि majority of the time हमारे mind में thousands of thoughts simultaneously चल रही होती हैं. तो I'll give you 10 seconds to think. क्या हमारे mind में एक positive thought और एक negative thought equally powerful होती हैं या नहीं? No? Okay. I would say that एक negative thought का इफेक्ट काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें 5 पॉजिटिव थॉट्स चाहिए. दिट इज हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज. अगर मैं अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देखती हूँ एंड आई स्टार्ट इवैल्यूएटिंग द सिचुएशन नेगेटिवली,
या मैं अपने आप को नेगेटिवली इवैल्यूएट करना स्टार्ट करती हूँ, तो उस एक क्रिटिसिज्म, एक इनसिक्योरिटी के लिए आई विल हैव टू कोलैबोरेट और कॉम्प्लीमेंट इट विद 5 पॉजिटिव थिंग्स, ताकि उसका इम्पैक्ट बैलेंस हो जाए, ताकि हम उस चीज को अपने पे, अपनी परफॉर्मेंस या अपने आप को हैम्पर ना करने दें. Okay, now first thing that we need to do whenever we're dealing with a stressful situation is to understand stress है क्या, आपके लिए stress क्या है. Every individual understands stress in a very different way. When we try and understand what stress is, we are able to understand the cause of it. जैसे अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं, तो the first thing जिस पे वो फोकस करेंगे would be कि आपका डायग्नोसिस ठीक होना चाहिए, उसकी वजह क्या है, उसका कॉज क्या है, तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं और अच्छे से फिक्स कर पाते हैं. जितना हम अपने कॉजेस के बारे में अवेयर होते हैं, उतना हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फ्यूचर में हैंडल करने के लिए. सेम वे वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेस सोर्सेस. क्या मेन कॉज है आपकी स्ट्रेस का? इज इट योर वर्क? इज इट योर फैमिली? इज इट दिस चेंज जो कोविड की वजह से हो रहा है? इन साइकोलॉजी वी कॉल देम ट्रिगर्स. ट्रिगर्स से मेरा मतलब है जो चीजें आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कर देती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, a lot of clients who have sessions or who come to the hospital, they say job insecurity. या स्टूडेंट्स को अगर हम लें, स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर इनसिक्योरिटीज हैं, अगर वो उस स्पेस में होते हैं या उसके बारे में स्ट्रेस लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी स्ट्रेसफुल रिएक्शंस प्रोसेस करने स्टार्ट कर देती है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम स्ट्रेस के सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करें. वी ऑल प्रोसेस स्ट्रेस सो डिफरेंटली, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इंडिविजुअल स्ट्रेसफुल सिम्टम्स को हैंडल कर पाए. इनको हम अलार्म बेल्स कहते हैं, या इंटरनल अलार्म बेल्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ या मैं किसी सिचुएशन में एंग्शियस होती हूँ, आई फील वीक इन माई नीज. मुझे लगता है मेरे नीज या मेरे काफ मसल्स बहुत वीक हो गए हैं. दैट इज मेरी बॉडी का अलार्म मुझे बताने के लिए, ओके आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड इन अ सिचुएशन. जब आप अपने इन अलार्म बेल्स को समझ पाते हैं, तो आप अपने आप को बेटर तरीके से समझ पाएंगे दैट जब भी मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन हूँ, मेरी बॉडी का फिजिकल सिम्टम या मेरे माइंड में ये चीज इंपैक्ट कर रही है, तो हम उसको डील बेटर कर पाएंगे. दीज आर कॉल्ड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. The another important point is to recognize your stress strategies. What is your go-to tactic for calming down? ये वो behaviors हैं जो हमने बहुत सालों में सीखे हैं. Maybe अपने आसपास लोगों को देखकर, maybe अपने टीवी के थ्रू, या maybe मल्टीमीडिया के थ्रू, या ऐसी किसी टॉक के थ्रू, जो मैकेनिज्म्स आप अडॉप्ट करते हैं, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए कि अगर मैं ये चीज करती हूँ तो मैं इंस्टेंटली काम हो जाती हूँ. लाइक इफ आई टेल यू माई ओन एग्जाम्पल, आई कोप बाय लिसनिंग टू पियानो म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल पियानो म्यूजिक. मैं जब भी वो सुनती हूँ, इट इंस्टेंटली काम्स मी डाउन. सो ऑटोमेटिकली अब वो कंडीशनिंग हो गई है दैट व्हेनेवर आई एम स्ट्रेस्ड, आई विल प्ले द म्यूजिक एंड इट विल हेल्प मी रिड्यूस द टेंशन इन दैट स्पेस. Implement healthy stress management strategies. It is very good to be mindful of your current unhealthy coping mechanisms. अब जब हम coping mechanisms की बात करते हैं with regards to stress, it's very important to understand the difference between healthy coping mechanism and unhealthy coping mechanism. Healthy coping mechanism हो गया like listening to music, going for some exercise, like pushing yourself to do something. When we actually talk about this, that is the time where we understand कि हमारे लिए healthy और unhealthy coping mechanisms को समझना बहुत important है. Healthy coping mechanisms हो गए something positive, जिसमें आप अपनी energy को use कर रहे हैं, like even listening to music, or even going for a run, or even talking to a friend, जहां हम अपने आप को harm नहीं कर रहे. बट ओवर टाइम हम बहुत सारे अननोइंगली अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स को भी पुट कर लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, यू टेक अ मेडिसिन, you self-medicate, which is very negative. Some people get addicted to binge watching something. Some people get addicted to maybe consuming alcohol or smoking, या कोई भी ऐसी चीज जो एक negative pattern बन जाता है,
और फिर क्या होता है, जब भी हम अगली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट डूइंग दैट बिहेवियर। वो हमें हार्म भी करता है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करने की हमारी एबिलिटी को भी कम करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग कोपिंग मैकेनिज्म्स। So it's also important that you switch your unhealthy mechanisms to positive mechanisms. For example, if overeating is your current go-to, you could practice meditation instead. Like जब भी आप overeating करने वाले हैं और आपको लगता है कि अभी मैं stressed हो रही हूँ तो मैं ये चीज में indulge करूंगी, उस टाइम पे अगर आप अपने आप को distract करते हैं 2 minutes के लिए, उन 2 minutes के distraction में आप filler के तौर पे कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं, even if it is talking to a friend, even if it is watching a video जो आपको eating के बारे में educate करता है, कोई भी चीज जिसमें आप comfortable हैं, बट वो डिस्ट्रैक्शन हमें मौका देता है अपने अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म को कोपिंग में चेंज करने के लिए। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई थिंक हम निग्लेक्ट कर देते हैं इज टू मेक योर सेल्फ केयर अ प्रायोरिटी। आई मीन आई फील अगर हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें, क्या मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से यस आई डू। बट एक्चुअल में जितनी काइंडनेस या जितना अफेक्शन हम दूसरे लोगों के लिए रखते हैं, अपने सर्कल के लिए रखते हैं, हम उतना ही ज्यादा क्रिटिसिज्म या उतना ही ज्यादा नेगेटिविटी अपने लिए रखते हैं। एंड स्पेशली लॉकडाउन में, क्योंकि हम घर पे हर टाइम हैं, हम सारी चीजों के लिए हर टाइम एक्सेसिबल हैं, उस स्पेस में सेल्फ केयर और अपना ध्यान रखना इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। What do I mean by self care? I don't mean self care के लिए हमें कुछ elaborate या कुछ luxurious करना चाहिए। अगर आप अकेले बैठे हैं और आप 10 मिनट के लिए अपनी डायरी लिखते हैं, जहां पे आप बस ये लिखते हैं how did I feel today, that is honoring your feelings, that is honoring your emotions। कि मैं अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करती हूँ या मैं अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखती हूँ, और उससे हम अपने माइंड में बहुत काम फील करते हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। तो सेल्फ केयर कंटिन्यूज टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। When we make time for ourselves, we put our well-being before others. This can feel selfish to start, but it is very important. You know, it's that thing that they say that when you are in a flight, तो आप पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, उसके बाद आप दूसरों का ऑक्सीजन मास्क लगाएं। The simplest things that promote well-being could be getting enough sleep, eating the right food, taking care of yourself. बेसिक चीजें जिनका हमें ध्यान रखना होता है, अगर हम उनका ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम छोटे बच्चों को देखें, सो उनके लिए सब कुछ इतना कंफर्टेबल होता है कि अगर वो ठीक से नहीं सोए हैं तो नेक्स्ट डे दिल बी क्रैंकी। अगर उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया है तो वो बहुत परेशान रहते हैं। ओवर टाइम एज जब हम अडल्ट बन जाते हैं, हम इन बेसिक चीजों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं और हम अपने आप को उतना पुश करते हैं जब तक वो चीजें हमें बहुत ज्यादा परेशान ना करने लगे। सो आई फील अगर हम अपने बेसिक से स्टार्ट करें, विच इज अपने न्यूट्रिशन से, अपने वाटर इनटेक से, अपने स्लीप के पैटर्न से, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होगा टू एक्चुअली टेक केयर एंड पुश योरसेल्फ इन फाइटिंग अगेंस्ट स्ट्रेस। नाउ कोपिंग मैकेनिज्म्स के बारे में, ये एक चीज है विच आई फाइंड वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर माई सेल्फ। जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो या जब भी आप किसी चीज से परेशान हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ बिफोर एंगेजिंग इन एनी सोल्यूशन या किसी भी एक्शन में एंगेज करने से पहले, क्या ये चीज मुझे हेल्प करती है या क्या ये चीज मुझे हार्म करती है। जब हम इस डिस्टिंक्शन को समझते हैं तो हम ये फील करते हैं दैट आई हैव सिचुएशन इन कंट्रोल, लाइक आई एम ड्राइविंग माई ओन कार। मैं डिसाइड कर सकती हूँ इस मोमेंट पे क्या मुझे इस एक्शन में इंडल्ज करना है या नहीं करना। इट मेक्स मी फील स्ट्रोंगर। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन व्हेनेवर यू आर इन अ सिचुएशन, क्या मुझे ये थॉट, क्या मुझे ये एक्शन हेल्प करता है या क्या मुझे ये एक्शन हार्म करता है।
So next time please आप ये question पूछ के try कीजिएगा if this is something that works for you. Use reframing. Reframing is a mental activity that involves looking at a stressor or a negative situation and explaining it in a positive and neutral way. Now, what do I mean by reframing? Reframing होता है जब हम same situation को एक different तरीके से present करते हैं. जब भी हम किसी stressful situation को अपना part बना लेते हैं. Like for example, imagine करें if this is you and this is the stressful situation. If you feel that this stress is a part of me, जितना ज़्यादा आप उसको अपना part बना लेते हैं, उतना it's difficult अपने आप से उसको separate करना. Versus अगर आप ये सोचते हैं कि ये stressful situation मुझसे external है, this situation has come, but it will go away. It's not something that will stay. It's not something that will trouble me. तो हम उस situations को एक बेहतर तरीके से deal कर पाएंगे, अपने आप से distance कर पाएंगे. Like for example, a simple thing, like when we say, I'm feeling angry, मैं इस situation में परेशान हो रही हूँ, then I feel like it's me. Versus when I say, I am noticing that this situation is making me angry. Just reframing the sentence makes me feel that it's not so much of me, but it's a situation and I can deal with this situation. So psychology में हम इसको reframing कहते हैं, just by the way we look at things, कि क्या वो हमारा हिस्सा है या वो एक situation है जो हमसे external है, जिसको हम deal कर पाएंगे. Second important point is to affirm your values. जब हम अपने आप को व्यू करते हैं, जो हमारे माइंड में हमारा सेल्फ इमेज होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें स्ट्रेंथ देने के लिए कि हम एक सिचुएशन से कैसे डील कर पाएंगे. जब हम अपने पास्ट को व्यू करते हैं या जब हम ये व्यू करते हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, पास्ट में हमने कैसे किसी स्ट्रेस को ओवरकम किया था, सो दैट गिव्स अस दैट पुश दैट इवन टुडे we can deal with it in a better way. We can deal with it in a more positive way. So what do I mean by values? Values से मेरा मतलब है that, like for example, if I give you this example of myself, I would say that in a difficult situation, I think that I have the strength, I can view the situation more rationally, more practically, rather than seeing it more emotionally. So when we look at our values, we're able to see ourselves in a better perspective or see ourselves in a more positive perspective. Now another thing which I always believe in is gratitude. Gratitude is extremely, extremely important for us. Now, what do I mean by gratitude? By gratitude, I mean that you set up a practice. You set up a practice where you're able to write down 3 things every night that you are grateful for. It can be any small thing. It doesn't have to be big things. Like we always think that it has to be really large things जिनके लिए हमें thank you होना चाहिए. Like it can be as simple as that I feel so blessed because I am breathing. I feel so blessed because I have food right now. As simple as that. And you can start writing down 3 things that you're grateful for every night, and you will see slowly आपका जो mindset है वो shift होने लग जाएगा from a more criticizing or from a negative point of view to a more positive point of view. Now, another important thing to remember is do not repeat anything from your list in like a week's time. And imagine if you keep doing this activity in the long run, you will have hundreds of examples of gratitude by the end of the year. And how beautiful it would be to go back to our journal and see that these are so many things I have in my life जिनके लिए I feel so blessed. Only give yourself 5 minutes a day and make gratitude a habit. When you express gratitude, you're giving yourself good vibes. Research says जब हम gratitude express करते हैं, it is as powerful as reducing the symptoms of depression.
reducing the symptoms of a few mental issues that we deal with. Now, how can you practice gratitude? What can you do? First simple thing is writing thank you notes. Like, there is a reason why they say thank you is a magical word. So in a day, just remind yourself, I want to thank someone today. Even if it's a colleague जिन्होंने आपकी इस space में बहुत help करी है, even if it is your family जिनको हम बहुत बारी taken for granted ले लेते हैं और अपना gratitude express नहीं करते हैं. So just writing a thank you note or even saying it to that person makes them feel valued and makes them feel good. So that way you reduce your stress and as well as make the other person feel more positive. The easiest way to practice this is to link it to an existing habit. आपकी कोई भी current habit जो आप अभी करते हैं, for example, I do it with my tea time. जब आप चाय पी रहे हैं, जब आपने, because वो एक ऐसी habit है जो establish हो गई है. अगर आप उसके साथ अपनी gratitude को include करते हैं, so every time that you drink tea, it will be a reminder that I have to write at least 3 or 4 things that I feel grateful about. Practicing gratitude can make you feel more alive. Absolutely. It can make you look at things which we start ignoring because of the complexity and stresses of life. But at the end of the day, it's about building a more positive and a more healthier mind space. Whatever you think and feel, you become. So it is very important and it is your responsibility to choose wisely. जो थॉट्स हमारे माइंड में रहती हैं, जो चीजें हमारे माइंड को डोमिनेट करती हैं, दे समवेयर बिकम आवर पर्सनालिटी. एंड हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को एटलीस्ट 21 डेज चाहिए होते हैं टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट. सो अगर आप आज से 5 मिनट्स ग्रैटिट्यूड को देते हैं, विद इन 21 डेज यू विल नो that it is something that you automatically engage in, something that you enjoy doing. But give yourself that time, give yourself that space to see आप इसके बारे में कैसा feel करते हैं. Positive self-affirmation. Now, this is something that we also use in therapy and in psychology. Self-affirmation are statements जिनको हम अपने आप को बोलते हैं. For example, like, how do I give you an example of self-affirmation? It would be a statement. Like, imagine आप सुबह उठते हैं और आप जब तैयार होते हैं, अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं और आप मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को कोई पॉजिटिव चीज बोलते हैं, like, I feel positive today, or I feel powerful today, I feel I will be able to overcome this negativity today. It is just a reminder that you give yourself. It is just a small reminder that I can handle this. I can deal with this in a more powerful way. Affirmations are really simple, short, and powerful expressions. When you say, think, or even hear them, they become thoughts that create reality. It's a reminder. अगर आप अपने आप को रिमाइंड करें या एक्नॉलेज करें कि एक दिन में हम कितनी बार पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं या नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, then we'll be able to really see the difference between the two and understand why positive self affirmation is important. They motivate, they keep the mind focused on the goal. A lot of times we're not focusing on our future goals, but we feel stuck in the present situation. Affirmations are a beautiful way जो हमें अपने गोल पे फिक्स रखते हैं और करंट सिचुएशन को मोर प्रोएक्टिवली डील करने के लिए स्ट्रेंथ देते हैं. They influence the subconscious mind and activate their power. They change the way you think and behave, and this can bring you into contact with new people who can help you with your goals. A lot of times जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं या जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, वो थॉट्स हमारी माइंड में काफी टाइम के लिए रहती है इन द डे, एंड आवर माइंड इज वेरी पावरफुल. हमारे माइंड में मूड कॉन्ग्रुएंट मेमोरीज होती हैं. जब हम किसी दिन सुबह उठते हैं एंड वी फील वेरी पॉजिटिव,
वी विल रियलाइज हम पूरे दिन को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं और हमारे माइंड में बहुत ज्यादा सिमिलर मेमोरीज आती हैं. सो इफ वी स्टार्ट आवर डे विद एनी नेगेटिव इवेंट, कोई भी छोटी सी चीज जो हमें परेशान करे, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को ट्रिगर करती है. जैसे रिपल इफेक्ट होता है कि अगर हम पानी के अंदर एक स्टोन फेंकते हैं और उससे बहुत सारे रिपल्स क्रिएट होते हैं. सो व्हेन वी गिव आवर सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द डे, हम वो रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं टू गिव आवर सेल्फ मोर स्ट्रेंथ and to view our situation more positively. It is never the situation that we can change, क्योंकि that is something जो हमसे external है. But what we can change कि हमारा नजरिया, हमारा perception, हमारा तरीका उस चीज को हैंडल करने के लिए, जिस पे हम वर्क कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टाइम जब आप सुबह तैयार हुए और वर्क पे जाएं या इवन रेडी होकर अपने रूम में आके वर्क फ्रॉम होम करें, अगर आप अपने आप को 5 सेंटेंसेस बोलते हैं, say for example, I will deal with this in a very strong way. It's okay if I am feeling weak today. I can give myself a day and feel better tomorrow, stronger tomorrow. Just start with any 3-4 statements जो आपको पॉजिटिव फील कराती हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग फील कराती हैं, and see how the ripple effect that it will create will be for a lot of strength and a lot of positive energy. Now, what are our goals when we focus about stress management or when we focus on mental well-being? It is to be more future oriented, but it is also to be more mindful and breathe a little in the present space. When we talk about future, what do we do when we can take care of the future? We can't anticipate how the situation will be for us tomorrow, but we can build our skills. We can build चीजें जो हमें future में help करेंगी. Learn anything new. Give yourself maybe only 15 to 20 minutes. कोई भी new चीज आप आज try करें. चाहे meditating हो, चाहे learning some course हो. Like during lockdown, one thing which has really helped people is trying new online courses. Like Harvard University has around 83-84 free online courses. मैं अभी एक कोर्स कर रही हूँ इसी वेबसाइट पे जो इंडियन कल्चर के ऊपर है या इंडियन रिलीजन और स्कल्पचर्स के ऊपर है. Being in psychology, I've never got a lot of time to study about the Indian culture or Hinduism. So I am using this time and giving only 20 minutes of myself to understand more about that, because that is something that I always wanted to do. And now I have more free time. So it makes me feel more productive. It makes me feel more constructive. Now, why do I say skill building is something that will be helpful? जब हम अपनी टाइम को यूटिलाइज करते हैं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या इवन जनरली ड्यूरिंग द डे, आइदर हम उस टाइम को कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं या हम उसको कुछ कंज्यूम करने के लिए यूज कर सकते हैं. बाय कंज्यूमिंग आई मीन जिस चीज में हम पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं, जैसे हम किसी की बात सुनते हैं या किसी से बात करते हैं, जो एक मिक्सचर हो गया. बट जब हम किसी चीज में कंस्ट्रक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं जहां हमें एफर्ट करना पड़ता है, जैसे कोई कोर्स की पढ़ाई करनी, जैसे कुछ लिखना जहां हम अपने माइंड को यूज कर रहे हैं, तो जब हम उन चीजों में एंगेज करते हैं वो हमें एक सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट देता है, एक सेंस ऑफ रिमाइंडर देता है कि हमने अपने टाइम को बहुत पॉजिटिवली यूज किया और हम अपने आप को बहुत ज्यादा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट या सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट देते हैं. सो व्हेन आई से आप अपने आप को 15 मिनट्स दीजिए कोई स्किल बिल्ड करने के लिए या कोई भी न्यू चीज के बारे में एजुकेट करने के लिए, तो उस स्पेस में आप कंस्ट्रक्टिव फील करेंगे और जब आप कंस्ट्रक्टिव फील करेंगे इट विल गिव यू मोर एनर्जी एंड मोर स्ट्रेंथ टू डील विद योर स्ट्रेसेस इन अ मोर इफेक्टिव वे, इन अ मोर एफिशिएंट वे. Now, I've been talking about mental health all throughout the lecture. But mental health hota kya hai? What is the comprehensive picture? It is a state of well-being जिसमें एक individual अपनी abilities को realize करता है, अपनी normal stresses of life जो कि हमारे normal days का हिस्सा होते हैं
उनसे इफेक्टिवली कोप करता है, प्रोडक्टिवली वर्क करता है, अपने वर्क में एफिशिएंट होता है, एंड सोसाइटी या कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट भी करता है। अगर एक स्टेट ऑफ वेल बीइंग में हम ये चारों चीजें एफिशिएंटली कर पाते हैं और इन पे ध्यान देते हैं, दैट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन आवर मेंटल हेल्थ। एंड लाइक they say, without mental health, there is no true physical health. Now, there will be stressors in life. There will be situations जिनमें हम आएंगे, तो हम क्विक रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज पे वर्क कर सकते हैं। कौन सी रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करती है, वो बहुत डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजी जो किसी और के लिए काम करती है। What are the basic 3 kinds of relaxation strategies? The soothing one, the mind-based one, and the body-based one. Now, what do relaxation strategies do in a stressful situation? हमें help करने के लिए वो हमें current situation में जितना ज्यादा हम उस situation से impact हो जाते हैं, उस impact को reduce करने में मदद करता है। Just imagine कि आपके सामने एक situation है और आप एक उस situation को normally देखते हैं वर्सेस हम उस सिचुएशन को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखते हैं। जब हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अगर हम अपने आप को उस सिचुएशन से डिस्टेंस करें और किसी भी वन ऑफ द 3 टाइप्स की रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजी में इंडल्ज करें, सो विल बी एबल टू सी द सिचुएशन मोर लॉजिकली रादर देन इमोशनली। अगर हम सूदिंग बेस्ड रिलैक्सेशन टेक्निक की बात करें, दैट इज जिसमें हम अपनी सेंसेस को यूज करते हैं, लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, लाइटिंग अ कैंडल, इंसेंस स्टिक्स, जो चीजें हमें सूद करती हैं। अगर हम माइंड बेस्ड रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजी की बात करें, सो वी कैन फोकस ऑन मेडिटेशन, वी कैन फोकस ऑन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, where we sit back and where we visualize positive things. And the third is body based, जिसमें हम योगा करते हैं या प्राणायाम करते हैं, हम अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं करंट सिचुएशन से डील करने के लिए। सो द नेक्स्ट टाइम आप सोचें कि मेरे लिए कौन सी रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजी विल वर्क, आई वुड से ट्राई ऑल 3 टू सी विच इज योर परफेक्ट फिट एंड विच वन वुड वर्क बेटर फॉर यू। Again, coming back to the basics of everything, the most basic thing, please make sure you eat properly, you sleep properly, and you hydrate properly. इतनी बार जब हम अपने मूड को देखते हैं या हम देखते हैं कि आज मैं अच्छा फील नहीं कर रही और टुडे आई एम नॉट हैविंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव डे, अ लॉट ऑफ टाइम्स उनका कॉज इनमें से एक चीज होती है, आइदर इट इज योर ईटिंग पैटर्न कि आप ठीक से खा नहीं रहे हैं, मे बी दिस न्यूट्रिशनल, either it's like हम sleep नहीं कर रहे हैं because we're all so busy and we put sleep as our last priority. It can be any of these 3. Now, because of COVID and because of our current situation, it's very important कि हम अपनी immunity को boost करें. उसके लिए we have the best answers in our Indian setup. We have a lot of superfoods which are very, very important and which help you in dealing with your physical strength and giving you the right kind of immunity boost that we need. For example, when we have things like dahi, tulsi, amla, dalchini, haldi, ginger, lemon or honey, जब हम in secrets of our Indian culture, in things जो पूरे world में use होती हैं to boost our immunity, if we make sure that we indulge any of these in our daily habits, it will be a beautiful form of self-care that I am taking care of myself. Sleep hygiene, sleep is very, very important. These are the reminders. Matlab, sleep hygiene is all about getting better sleep and developing better sleeping habits. For example, you can avoid caffeine or avoid any sort of substances जो हमारी sleep को disturb करते हैं. आप कोशिश करें कि सोने से 3-4 घंटे पहले आप किसी भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी में इंडल्ज ना करें या किसी भी फॉर्म ऑफ थिंग्स जो हमें एक्टिवेट करती हैं, जो हमारे माइंड को बहुत ज्यादा एक्टिवेट या बहुत ज्यादा अलर्ट स्पेस में करती हैं, अगर हम उनको स्लीप करने से 3-4 आवर्स पहले स्टॉप कर दें, देन
our sleep will be much better. And sleep and stress have a very strong relationship. Most of the people जो stressed feel करते हैं या जो situations में अपने आप को anxiety या इन सारी चीजों से deal करते हुए देखते हैं, one of the first things जो उनको trouble करता है is कि उनका sleep pattern starts getting affected. आपका sleep pattern affect होता है, उसकी वजह से आप और ज्यादा stressed feel करते हैं, और ज्यादा anxious feel करते हैं. So if you take care of your sleep, आप अपने आप को एक रेजिलियंस फैक्टर दे रहे हैं, अपने आप को एक स्ट्रेंथ फैक्टर दे रहे हैं. Okay, this is my favorite. Me time for 10 minutes a day. हम इतने ऑक्यूपाई हो जाते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी फैमिली ऑब्लिगेशंस में, वर्क स्पेस में, that we stop actually even acknowledging hamare emotions, not just taking care of them, but even processing them, that what is it that I am feeling. I would say just give yourself 10 minutes of happy hormones. If it's walking, yoga, running, anything that releases a lot of happy hormones in your body. जब भी आप किसी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी का पार्ट होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, जो आपको एक सिचुएशन से डील करने की स्ट्रेंथ देते हैं. अगर आप सिर्फ 10 मिनट्स के लिए योगा करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या 10 मिनट्स के लिए प्राणायाम करते हैं, दैट रिलीजेस अ लॉट ऑफ हैप्पी हॉर्मोन्स इन योर बॉडी. There is a term called runner's high, that whenever you run, whenever you sweat, you end up feeling very energetic for your day because your body is releasing those hormones. It's like a physiological effect of it. So I would say अगर आप अपने आप को 10 minutes of कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है, जो आपकी बॉडी को एक्टिवेट करती है, आपकी बॉडी को अलर्ट फील कराती है, so that is something which also works as a very beautiful resilience factor. But if you don't want to do that, you can do anything that relaxes you, even if it is 10 minutes of just sitting down and doing nothing. हम बहुत बार देखते हैं कि हमें इतनी आदत होती है ऑटो पायलट पे भागने की. हम हर चीज को स्टार्ट टू फिनिश का माइंडसेट से स्टार्ट करते हैं. I mean, we've stopped enjoying the process, but we only enjoy the end goal. कि हमें वहां पहुंचना है, जब वो एंड रिजल्ट आएगा तो मेरा स्ट्रेस फिनिश हो जाएगा. आई एम वर्किंग फॉर दिस जॉब, आई नीड टू वर्क वर्क वर्क, एंड आफ्टर 20 years जब सब सेटल हो जाएगा देन आई विल बी हैप्पी. बट व्हाट वी फॉरगेट कि हम उसकी वजह से अपनी जर्नी को एंजॉय करना बंद कर देते हैं. लाइक लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल. अगर हम किसी ट्रिप पे जाते हैं, इमेजिन हम सब बचपन में मसूरी गए हैं या नैनीताल गए हैं. सो जब हम उन ट्रिप्स को याद करते हैं, हमारी जर्नी होती है जो हमें याद रहती है, दैट हमने रास्ते में स्टॉप किया, हमने यहाँ पे रुक के इस ढाबे पे खाना खाया, या रास्ते में हमने ये बातें करी. हम कभी भी उस चीज को ऐसे डिस्क्राइब नहीं करते कि हमें वहां पहुंच के कैसा लगा. सो एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, इट्स योर जर्नी दैट मैटर्स, इट्स नेवर द एंड गोल. और अगर हम इस जर्नी में थोड़े और माइंडफुल होते हैं, या थोड़े और अपनी फीलिंग्स और अपने करंट माइंडसेट को जज करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं, तो हम अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा आज भी एंजॉय कर पाएंगे. एंड इवन इन द फ्यूचर माइंडसेट, जब हम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली एनालाइज करेंगे, तो ये छोटी छोटी मेमोरीज हमें याद रहेंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी स्कूल की चीजें रिमाइंड करते हैं, हमें एंड गोल्स याद नहीं रहते कि जब वो क्लास खत्म हुई तो क्या हुआ, बट हमें वो जर्नी याद रहती है कि उस क्लास में हमारी मेमोरीज क्या थी, उस क्लास में हमें किसी ने कैसे फील कराया था. हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रांगली हमें फुल लाइफ इम्पैक्ट करते हैं, हमारी स्ट्रेस को डील करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं. सो आई वुड से दैट जब हम अपनी आज की सिचुएशन में और माइंडफुल होते हैं, so it is something that again gives us more strength. You can do a deep breathing technique also for 10 minutes of relaxation, which is called a 4-7-8 technique. This means that you inhale for 4 seconds,
You inhale for these 4 seconds. You hold that breath for 7 seconds. And you exhale for 8 seconds. It is a very popular relaxation technique, but I feel it's a extended version of a pranayam, जहां पे आप अपनी सारी thoughts को अपनी current breathing space में डाल रहे हैं. Even if आप घर में walk करते हैं for 10 minutes या अपने plants को water करते हैं, that is also enough. That is also 10 minutes of relaxation. And even if you listen to instrumental music. Now, why do I even say instrumental music? Because जब हम words वाला music सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे mind में different memories को trigger करता है. But instrumental music does not trigger a lot of memories, but is very, very relaxing. So this is the short presentation that I made for all of you. I hope that ये जो सारी tips हैं या ये जो सारी चीजें हैं, हम उनको कहीं ना कहीं अपनी life में थोड़ा बहुत भी inculcate अगर कर पाएंगे, तो हम ये notice करेंगे our mindset will change इन situations को view करने का, and we will feel that हम और ज़्यादा well equipped हैं. And from a space like stress, जो एक main चीज हमें feel कराता है, it makes us feel helpless. It makes us feel मेरे control में कुछ नहीं है. But when we start to view it as, I have a lot of things in my control and I can work on these things, then from a situation of helplessness, we start shifting to a situation of strength and positivity. So next time when you have these thoughts running in your mind, please ask yourself, is this something that's helping me? Can I change it? Do I want to change it? And just that acknowledgement you will be surprised to see how it will push you to be more well equipped to deal with these situations. Thank you so much, everyone, for listening to me, giving out this time. I hope I was able to give you some suggestions that will help you. Thank you. Thank you, Ms. Shanky ji. And as you have said that today is World Mental Health Day, and हम बहुत ही आपके थैंकफुल हैं कि आपने इसी दिन पर हमें इतने अच्छा मेंटल वेलबींग के बारे में इतना इंटरेस्टिंग एंड इजी वे से हमें एक्सप्लेन किया कि मुझे लगता है मैं नोट्स ही बनाती रह गई, एंड इट वाज रियली गुड. मतलब ईच एंड एवरी स्लाइड ऑफ योर्स इज गिविंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योरसेल्फ, ऑन अबाउट हाउ वी कैन कनेक्ट विद आवर बॉडी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली, जो आपने बात कही कि जिस तरह की सिचुएशंस में हम अभी हैं, हमें क्या करना है, मेनली अपने माइंड सेट को, एक हम कहते हैं ना, माइंड सेट को चेंज करना है, या चेंज कह लीजिए, या उसे जैसे हम कहते हैं ना अपने कंट्रोल में लाना है, कि उस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को. एंड जिस तरह से आपने ये भी बात बहुत अच्छी बताई जिसको मैं रिलेट कर पा रही हूँ. हम कहते हैं, आपने कहा कि थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी है लाइफ में अपने आप को थोड़ा एनकरेजमेंट लाने के लिए. तो जब हम अपने माइलस्टोन्स कहीं ना कहीं सेट करते हैं कि मुझे ये काम अभी खत्म करना ही है, लाइक इन अनदर 1 आवर, तो वो भी एक स्ट्रेस तो देता ही है, लेकिन एक एनकरेजमेंट की फीलिंग भी देता है. तो ये उसका पॉजिटिव साइड है जो हमें आपकी प्रेजेंटेशन से पता लगा. और जो आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि अपने आप को पहचानना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ जो आपने कहा अपने आप को सेल्फ एक्नॉलेज भी करना, और जिस दूसरों के प्रति भी एक्नॉलेजमेंट और ग्रैटिट्यूड रखना, ये अपने आप में जो स्ट्रेस को हटाने के पॉइंट्स हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब ऐसा है कि मुझे लगता है हम लाइफ में करते भी हैं. मेरे ख्याल से हम में से यहाँ जितने लोग हैं तकरीबन रात को सोते हुए एक बार सोचते होंगे कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया. तो वो उस तरह एक्नॉलेजमेंट एंड ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अपने आप को प्रोडक्टिव थॉट्स में और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज में जो अपने आप को इन्वॉल्व करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द वेलबींग ऑफ योर बॉडी एंड योरसेल्फ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की. मतलब मुझे लगता है मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड हमारे अटेंडीज को भी बहुत अच्छा लगा होगा. कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, अभी चैट बॉक्स में आएंगे, लेकिन उससे पहले शायद मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो काफी दूसरे लोगों की भी जिज्ञासाओं को मतलब शांत कर सकती हैं. ऐसी हैं जैसे कि कल ही मैं पेपर में पढ़ रही थी, शायद आपने भी टाइम्स ऑफ इंडिया के डेली टाइम्स सेक्शन में पढ़ा होगा कि कोविड के टाइम पे, क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स वो नहीं है, फिक्स नहीं है, एनी टाइम हम कभी भी अपना लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, चाहे सुबह है रात.
तो नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होने से, और एंड ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ मीटिंग्स, हम खुद ही आप भी देख रहे होंगे कि कितने सारे वेबिनार, कितने सारे प्रेजेंटेशंस, कितनी सारी मीटिंग्स, मतलब ऑफिस की भी और इवन अपनी फैमिली गेट टुगेदर्स भी हम लोग आज के लिए जूम वगैरह के थ्रू भी कर रहे हैं। तो इन दैट केस अगर हमें कहें कि हमें सेल्फ केयर करनी है, जैसे आपने कहा 5 मिनट्स और 10 मिनट्स फॉर योर सेल्फ ओनली, तो हाउ दैट इज पॉसिबल? मतलब जो पहले तो फिर हमारी क्योंकि फिक्स वर्किंग आवर्स थे तो हम शायद टाइम अपना निकाल लेते थे कि ऑफिस के आने के बाद 5 मिनट में आधे घंटे के लिए वॉक पे जाएंगे अपने फैमिली के साथ, लेकिन अभी वो मैनेज करना भी मुश्किल हो गया क्योंकि ऑल द मेंबर्स आर वर्किंग एंड क्योंकि किसी के भी फिक्स्ड आवर्स नहीं है, एनी टाइम दे आर डूइंग. So if you think I should take a one by one question or I should say all my questions like that? No, let's do it one by one. I think that would be more interesting. जी. Yeah. So जो आपने अभी पूछा, first of all, thank you so much for all these warm and kind compliments that you gave me. I feel that, Dr. Aparna, that self-care does not have to be so much कि हमें उसके लिए अलग से टाइम निकालना है. Like for example, a lot of times हम बेसिक चीजें जो करते हैं, अगर हम उनको अपना सेल्फ केयर का पैटर्न देखें या उनको अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटी बताएं, तो वी विल फील कि हम वो काम भी फिनिश कर रहे हैं और हम अपनी सेल्फ केयर में भी इंडल्ज कर रहे हैं. लाइक एक सबसे बेसिक रिलैक्सिंग चीज, जब हम नेचर से कनेक्ट करते हैं, जब हम कोई भी नेचर वाली चीज करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील होता है, क्योंकि एज इंडिविजुअल्स, एज ह्यूमन बींग्स, वो चीज हमारे को एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा हेल्प करती है स्ट्रेस को डील करने के लिए. सो जब आप अपने घर में अपने प्लांट्स को वाटर कर रहे हैं 10 मिनट्स के लिए, दैट कैन बी योर सेल्फ केयर. दैट टाइम जस्ट मेक श्योर आप उसको अकेले कर रहे हैं या अपने किसी बच्चे के साथ कर रहे हैं घर पे, एंड सिर्फ वो 10 मिनट्स के लिए आप कोशिश करें कि ना आप पास्ट के बारे में सोचेंगे, ना आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे. आप सिर्फ फोकस करेंगे उस प्लांट को वाटर करने के लिए, मे बी उसकी मिट्टी को ठीक करने के लिए. आप सिर्फ उस मोमेंट में माइंडफुल होंगे कि मैं अभी ये कर रही हूँ और मेरी सारी थॉट्स इसके बारे में है, और वो 10 मिनट्स ही सफिशिएंट है. इवन जब हम खाना खाते हैं, हम खाना च्यू नहीं करते बिकॉज हम उसको फिनिश करना चाहते हैं, और वो भी हम भाग रहे होते हैं. एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ऑफ माइंडफुल ईटिंग. नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ खाएं, आप कोशिश करें आप उसको थोड़ा स्लो खाएं, उसको सेवर करके खाएं, और आप नोटिस करेंगे उस खाने का टेस्ट भी डिफरेंट होगा, और वो 5 मिनट्स की माइंडफुल एक्टिविटी सफिशिएंट है आपको करंट सिचुएशन में माइंडफुल फील कराने के लिए. लाइक सेल्फ केयर इज व्हाट? इट्स अबाउट बीइंग माइंडफुल इन द करंट स्पेस. आई डोंट से हमें बाहर जाके 15 मिनट के लिए अलग बैठ के मेडिटेट करना है या हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज करनी है. हम अपनी बेसिक चीजों को ही लिंक कर सकते हैं ताकि वो हमें कहीं ना कहीं उस चीज में रिलैक्स फील कराएं और हमारी सारी फ्यूचर या पास्ट की एंजाइटीज को रिलैक्स कर पाए. I hope that answers your question. जी, तो जिस तरह आपने बताया, तो मेनली आपने ये बात अपनी टॉक में भी कही थी कि एक तो अपने आप को पहचानना, एक तो अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी फैमिली को, हर अपने आप को उसमें पहचानना है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, एंड साथ ही अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकनसाइल करना बार बार. तो उससे कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस जो है कम होगा और हम अपनी जो भी उस समय कर रहे हैं एक्टिविटी, उसके अंदर माइंडफुलनेस हमारे साथ रहेगी. एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि जो आपने एक बात कही कि अपने काम को सोने से पहले आप अक्सर अपने काम को 2-4 घंटे पहले खत्म कर दीजिए. पर जनरली आपने देखा होगा, क्योंकि बीइंग इन दिल्ली और दूसरे जिस तरह के प्रोफेशंस में हम लोग हैं, में आफ्टर डिनर ही हमारा माइंड ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हो जाता है सोचने में, क्योंकि पीसफुल हो जाता है, तो इसीलिए लगता है कि नहीं ये भी काम कर लो और ये भी काम कर लो. एंड बाय 12 जब हम सोने जाते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत हल्का फील करते हैं कि हमारा फाइनली आज डे का सारा काम खत्म हो गया, एंड हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, और मुझे लगता है ज्यादा बेटर नींद आती है क्योंकि माइंड में कोई टेंशन ही नहीं है. तो उस केस में जो आपने कहा कि 4 घंटे पहले अपना काम खत्म कर लें, तो तब हम कैसे उस चीज को रिलेट कर सकते हैं? I think in today's time हमारा सारा schedule and everything's gone for a toss. जो हम यूजुअली करते थे दैट वर्क या हमारी बहुत सारी चीजें हमारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिनिश हो जाती थी. हर एक चीज की, जैसे आपने बताया, जो आर्टिकल भी आपने पढ़ा, कि हमारी बाउंड्रीज होती थी हर चीज की, तो हम एक स्पेस से दूसरे स्पेस में स्विच करते थे.
अब वो सारी बाउंड्रीज खत्म हो गई है, इसलिए बहुत सारी चीजें जम्बल्ड अप है। कहीं ना कहीं अगर हम सोने से पहले, लाइक आई नो आज के टाइम में हमारे लिए मे बी 4 आवर्स पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम कहीं ना कहीं सोने से पहले से फॉर एग्जाम्पल 1.5 आवर्स या 2 आवर्स का ब्रैकेट रखें कि इस टाइम पे आई विल डू समथिंग जो वर्क रिलेटेड नहीं है, बट जो आई वॉन्ट टू एंगेज इन फॉर माई मेंटल स्पेस, या इवन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इवन आप कुछ चीज सुनते हैं, या इवन आप जब बस उस टाइम पे लाई डाउन करके अपने फैमिली से या किसी से कोई बात करते हैं, वो अनवाइंडिंग टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी बार नोटिस करेंगे कि अगर हम सोते हुए एक स्ट्रेस स्पेस में सोते हैं, या फॉर एग्जाम्पल एक बिजी स्पेस में सोते हैं कि हम अपने वर्क को एनालाइज कर रहे हैं, या हम सोच रहे हैं ये भी बचा है, ये भी बचा है, मुझे ये फिनिश करना है, आज ये करना है, कितनी बारी जब आप उठते हैं आपका ऑटोमेटिक फर्स्ट थॉट होता है ये करना है, दिस इज व्हाट आई नीड टू फिनिश। सो इमेजिन आप अपने माइंड को ना सोने से पहले रिलैक्स कर रहे हैं, ना उठने के बाद रिलैक्स कर रहे हैं, हम उस पे सिर्फ उतना सारा बर्डन या उतनी सारी चीजों का प्रेशर डाल रहे हैं। तो अगर आप रिलीजियसली, आई एम नॉट सेइंग 4 आवर्स दें, आज के स्केड्यूल में चलिए हम मानते हैं वो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप अपने आप को सिर्फ हाफ एन आवर या 1 आवर बिफोर स्लीपिंग दें, वो आपके माइंड और आपके बॉडी को अनवाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि आप अपने, बिकॉज आप ये समझें जब आप किसी चीज में अलर्ट होते हैं, चाहे काम करने में या और किसी चीज में, आपके सारे बॉडी के सिस्टम्स अलर्ट होते हैं, आपकी हार्ट बीट हाई होती है, आपके सारे फिजियोलॉजिकल हॉर्मोन्स हाई होते हैं, और उनको रिलैक्स करके जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी इज एट अ बेटर पीस। आप नोटिस करेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर हो जाएगी। आप जितनी जल्दी सोएंगे और जितना बेहतर सोएंगे वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो ओनली गिव योर सेल्फ 1 आवर ऑफ अनवाइंडिंग टाइम, जिसमें मैं काम के बारे में या चीजों के बारे में नहीं एनालाइज करूंगी। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा दैट वो टाइम इज द मोस्ट क्वाइट टाइम। सो उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि सब अभी फिनिश कर लेते हैं बिकॉज दिन में बिजी हो जाएंगे, बट दैट हाफ एन आवर और 45 मिनट्स ऑफ अनवाइंडिंग टाइम आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स, उन सारी चीजों के लिए वो रिलैक्सेशन स्पेस होगा। सो ट्राई डूइंग जस्ट 45 मिनट्स टू बिगिन विद, एंड जब आप अपनी स्लीप में इंप्रूवमेंट नोटिस करेंगे, यू विल कॉन्शियसली मेक इट एन एफर्ट कि दिस इज हाउ आई वांट टू डू। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये बताया। एंड क्योंकि हम इससे कई बार रिलेट भी करते हैं, जनरली हमें से सभी की आदत है कि रात को सोने से पहले अपने मैसेजेस एंड फेसबुक वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा सोशल मीडिया देखते हैं, तो वो भी एक मुझे लगता है काइंड ऑफ रिलैक्सेशन ही है शायद। कई लोग म्यूजिक प्रेफर करते हैं, कई लोग टीवी, जिस तरह से भी। तो अच्छा, इसके साथ ये तीसरा क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि अभी चैट बॉक्स में मुझे और क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं, तो उसमें जनरली हम लोग ये पहले से भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो है कोविड के टाइम पे 2020 में इन टर्म्स के साथ हम ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। हम कई जो लेमैन हैं, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी सीधा कह दूंगी मुझे डिप्रेशन हो रहा है, कहना मैं चाह रही हूँ कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो क्या स्ट्रेस से चलते चलते ही हम डिप्रेशन तक पहुंचते हैं, या दोनों सिमिलर ही हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक आज के टाइम में हम जितना ज्यादा मेंटल हेल्थ में अवेयर होते हैं, उतना ही ज्यादा आई थिंक हम उन टर्म्स को थोड़ा लूजली यूज कर लेते हैं विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई फील, आई मीन इफ आई बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू इन मोर डिटेल, दैट स्ट्रेस इज समथिंग जो एक कॉज से रिलेटेड होता है। मैं स्ट्रेस्ड हूँ अभी क्योंकि मुझे वर्क पे ज्यादा आवर्स देने हैं या मुझे वर्क प्रेशर है। मैं स्ट्रेस्ड हूँ अभी क्योंकि मेरी फैमिली में कोई इशू है। मैं स्ट्रेस्ड हूँ अभी क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। जब भी हम किसी चीज को एक कॉज से कनेक्ट कर पाते हैं, सो दैट इज स्ट्रेस। वो टेम्पररी होता है, शॉर्ट टर्म होता है, और यूजुअली जब हम उस सिचुएशन से डील कर पाते हैं, जब वो सिचुएशन खत्म हो जाती है, तो वो स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है। वर्सेस अगर हम एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें, वो हम किसी एक कॉज से लिंक नहीं कर सकते। मतलब वो हम नोटिस करेंगे कि हमारा एक पैटर्न बन गया है, हम हर टाइम थोड़ा नेगेटिव स्पेस में रहते हैं, या हम उतना प्रोडक्टिव नहीं फील कर पाते जितना हम नॉर्मली प्रोडक्टिव फील करते हैं। और आप नोटिस करेंगे जब भी आपको एंजाइटी या डिप्रेशन या ऐसा कोई मेंटल हेल्थ इशू होगा, तो आप अपने डेली के जो नॉर्मल रूटीन्स हैं या नॉर्मल काम हैं, उनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप स्ट्रगल करेंगे उनको फिनिश करने के लिए।
और मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको एटलीस्ट 2 वीक्स तक अगर कंसिस्टेंटली हो रहे हैं और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उन थॉट्स को ओवरकम करने के लिए या उन चीजों को डील करने के लिए, बट नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट इज द डिमार्केशन. अगर आपको वो सिम्टम्स किसी कॉज से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इस वजह से है और जब वो वजह ठीक हो जाएगी तो वो चला जाएगा. अगर वो कॉन्टिन्यूसली 2 वीक्स तक आपके साथ है और वो कहीं ना कहीं आपको अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में अफेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंसान डिप्रेशन में है तो वो सुबह उठने में प्रॉब्लम होगा, अपना काम पे जाने में प्रॉब्लम होगा, अपने काम को एफिशिएंटली खत्म करने में प्रॉब्लम होगा, स्लीप में प्रॉब्लम होगा. जितनी भी चीजें हम नॉर्मल हेल्थ से एसोसिएट करते हैं उनमें डिफरेंसेस आना, उनमें इश्यूज आना is a very strong indicator of a mental health issue. And again, always relating it to a cause. क्या ये इस वजह से है क्योंकि ये सिचुएशन आई, या मैं जनरली ऐसा फील करने लग गई हूँ and I started feeling like this is a part of my personality. That is the distinction that helps us in understanding the differences. जी बिल्कुल. तो इट मीन्स जो ये स्ट्रेस है वो कुछ समय के लिए और थोड़ी देर के लिए ही होता है, किसी कारण से होता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से डिप्रेशन है आपकी. आई नो यू आर अ डॉक्टर, तो आप नहीं कभी भी अपने पेशेंट्स को कहते होंगे कि आप डिप्रेशन में हैं, तो इट मीन्स आपको मेडिकल हेल्प की रिक्वायर्ड है. आपको बीमारी के रूप में आप कभी उसको नहीं बताते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्ट्रेस जो है एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्ट्रगल के रूप में है. बट डिप्रेशन अपने आप में थोड़ी सी, जिसको हम बीमारी कह सकते हैं, एक डिजीज के रूप में देख सकते हैं शायद. आई फील मोर देन अ डिजीज, जब हम किसी चीज को डिजीज कहते हैं तो हम उस चीज को लेबल कर देते हैं. एंड ऑलरेडी मेंटल हेल्थ को लेके जितना टेबू होता है, लाइक यू नो, अगर आपको कफ है तो आप फिजिशियन के पास चले जाएंगे एंड यू विल जस्ट गेट इट फिक्स्ड. अगर आपके पैर में चोट है यू विल गो टू एन ऑर्थोपेडिक एंड गेट इट फिक्स्ड. बट अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं. हम बोलते हैं तुम्हारा मूड खराब है, ठीक हो जाएगा, कुछ कर लो, अपने आप को बिजी कर लो. तो हम एनीवेज उस चीज को उस तरीके से ऑब्जर्व नहीं करते हैं. एंड यू नो, अगर हम इन टर्म्स को इस तरीके से यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम चीजों को लेबल कर देते हैं. जैसे आप देखेंगे, अगर स्कूल में कोई बच्चा है जिसको हम शैतान लेबल कर देते हैं, दिस इज अ नॉटी किड, ही ऑलवेज डज दीज थिंग्स, सो वो चाइल्ड वो चीजें और ज्यादा करने लग जाता है बिकॉज ही स्टार्ट्स टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद दैट लेबल. सो जब भी हम मेंटल हेल्थ टर्म्स को यूज करते हैं, चाहे एंजाइटी, चाहे डिप्रेशन या कुछ भी, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम ये लेबल्स यूज कर रहे हैं. एंड उसके बाद जो उस इंडिविजुअल को इम्पैक्ट होता है उस चीज का, या सोसाइटी जिस तरीके से उस चीज को व्यू करती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी कॉशियस व्हेन वी यूज दीज टर्म्स. जी बिल्कुल. आप डॉक्टर हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हमें 1 घंटे में ऐसा लगा कि हम किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं. जनरली डॉक्टर के साथ बात करने में हम थोड़ा सा एक मन में डर होता है, क्या बोलें क्या ना बोलें. आपसे बात करने और आपका लेक्चर सुनने से ही मुझे लगता है कि हम में से कई लोग तो स्ट्रेस फ्री फील कर ही रहे होंगे. आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही उसको सरलता से हमें समझाया और बताया. और वन मोर क्वेश्चन आई थिंक फ्रॉम someone has raised her hand. You can unmute yourself if you are interested in doing in having a question. हेलो जी प्लीज. हाँ जी प्लीज कहिए. नमस्ते सांकी मैम एंड थोड़ा सा नमस्ते लाउडली बोलेंगे मैम. प्लीज, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. नमस्ते सांकी मैम. Yes, Namaste please. Aparna ma'am. Actually, I was जी I was watching the live from Facebook, and I just entered into this the meeting room. Then I think the chat box is kept chat disabled. I think no one is responding in the chat box just because the chat disabled रखा है setting में side. इसलिए there are no chat in the chat box because of that thing only. I just wanted to say that it was really very interesting, being a very young, though very young. It's really a very good session, and from this session, I just wanted to join this this yoga camp. Actually, it's very inspiring, and it's very insightful session for me. That's it. I just wanted to say this. Thank you so much.
So much. Thank you for the compliment, and please be connected with us for more lectures and for the yoga camp. And any other question? Anyone can raise hand if there is any other question. तो हमारे पास और क्वेश्चंस तो नहीं है. मुझे लगता है कि काफी प्रॉब्लम्स एंड काफी चीजें जो मन में हैं हमारे, आपने अपने लेक्चर के थ्रू से सॉल्व किया शेंकी जी. एंड बहुत अच्छी बात आपने जो कही कि हमारे किचन में ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और स्ट्रेस को दूर करने के लिए चीजें हैं. तो हमें अपने किचन की तरफ ध्यान देना चाहिए और वहां से ही हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिनसे हम अपने आप इस कोविड के टाइम को में भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. तो हम आपके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ इतना अच्छा लेक्चर था कि मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो इसको और 1 घंटा कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा फील आ रहा है. और जैसा कि अभी हमारे एक श्रोता ने भी यही बात कही हमें, तो हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं. साथ ही इस कार्यक्रम के अंदर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा कल जो है हमारी लेक्चर सीरीज नंबर 2 है, जिसके अंदर हमारी डॉक्टर निशी अरोड़ा जी हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज एंड हॉस्पिटल की दिल्ली से. एंड वो आयुर्वेदिक नॉलेज एंड फूड एंड हेल्थ के बारे में, जिसका आज सिर्फ हमें एक छोटा सा के उस विषय को यहाँ उठाया जरूर शेंकी जी ने, लेकिन उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमें कल मिलेगा. तो आप कल भी हमारे साथ इस लेक्चर के लिए जुड़ सकते हैं और आप सब आमंत्रित है उसको सुनने के लिए भी. और मैं ये भी बताना चाहूंगी जो हमारा योगा कैंप चल रहा है, आज उसका 6ठा दिन है और सुबह ही 7 बजे से उस सेशन में काफी लोग हमारे साथ जुड़े जिन्होंने प्राणायाम और कई आसनों के थ्रू अपने आप को और अधिक हेल्दी बनाने की तरफ वो आगे बढ़े. और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम चाहते हैं कि इसी तरह निरंतर आप लोग हमारे इस लेक्चर सीरीज एंड योगा कैंप के साथ जुड़े रहिए और अपने आप को और स्वस्थ रखिए. मेंटल वेलबींग की तरफ ध्यान दीजिए, जो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, स्पेशली इन दिस एरा, जो ये अभी जिस कोरोना एरा में हम चल रहे हैं, विच वॉज नेवर एक्सपेक्टेड. तो इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि इतना ध्यान रखिए. और ये जो हमारा न्यू प्लेटफॉर्म है, सभी को पता है, श्रेष्ठ कला संगम के थ्रू जो जिस तरह के प्रोग्राम्स हम देख रहे हैं, और इस बार तो हंसराज कॉलेज के साथ मिलकर इस योगा कैंप एंड योगा लेक्चर सीरीज को किया जा रहा है, और दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड इसके लिए हम थैंकफुल हैं फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली टू श्रेष्ठ कला संगम्स टेक्निकल टीम एंड PR टीम, एंड ऑल्सो जो टेक्निकल टीम हमारी हंसराज कॉलेज से हैंडल कर रही है, जिनके हेड हैं अमित चौहान जी और उनकी टीम. हम आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और बहुत ही हम कृतज्ञ हैं कि आपने इस प्रोग्राम को इस तरह का सोचा और इस तरह हमारे सामने इसको रखा, और आपके मन में आया कि यही टाइम है. क्योंकि मैं अभी आज ये बात सोच भी रही थी कि आगे आगे विंटर्स आ जाएंगी, और उस समय अगर हम किसी को कहें कि अब आप सुबह उठिए, वैसे उठना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो ये टाइम है, इस टाइम क्योंकि ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है, और उस समय अपने आप को स्वस्थ बनाकर आगे बढ़ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके लिए हम दोनों ही संस्थाओं के प्रति धन्यवाद करते हैं. एंड साथ ही जो हमारे गेस्ट हैं आज के, हमारी रमा मैम तो आज हमारे साथ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनके प्रति भी, और हमारे जो आज की मेन इन्वाइटेड स्पीकर मिस शेंकी कुमार जी, डॉक्टर शेंकी कुमार जी हैं, उनके प्रति हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, और दोनों भी ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ पर मैं उनका धन्यवाद करती हूँ. इसके साथ साथ हमारे जितने अटेंडीज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, और साथ में जो उधर फेसबुक लाइव के थ्रू भी हमारे साथ, और दूसरे हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबके प्रति we are very much thankful. And I just want to say that please stay tuned with us for more lectures and be healthy. And इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद.